السلام علیکم، 102 میں خوش آمدید. میں ہوں شجاع قریشی. ناظرین، 13 فروری 2012 کو بھارتی کامرس منسٹر آنند شرما ایک تاریخی دورے پر پاکستان پہنچے اور اس دورے کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے فروغ کے مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. ہم اس پروگرام میں آج آپ کو آنند شرما صاحب کا ایک خصوصی انٹرویو دکھائیں گے جس میں انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کے فروغ کی اہمیت اور اس کے فوائد پر تفصیلی بات چیت کی. آئیے وہ انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سر بلاتے ہیں، یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے. یہ سر بلاتے ہیں جب تم ادھر نہیں آتے. ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے معزز مہمان کا. آنند شرما صاحب، تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو پاکستان. شکریہ. اور اس سے پہلے کہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، آپ کو بتا دوں کہ اس انٹرویو میں میرے ساتھ میزبانی کے فرائض عامر ضیاء صاحب بھی انجام دے رہے ہیں جو سینئر صحافی ہیں اور ایڈیٹر ہیں دا نیوز کے. اور میں عامر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں. شرما صاحب، یہ فرمائیے گا، پاکستان میں ایک یہ جنرل پرسیپشن ہے کہ ہندوستان جب تجارت کی بات آتی ہے تو ہندوستان اس فراخ دلی اور کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ جو اتنی بڑی معیشت کو کرنا چاہیے تھا. اگر آپ صرف فگرز کو دیکھیں کہ پاکستان جو امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے تو مور دین 2.33 بلین ڈالرز کا لاسٹ ایئر کا امپورٹ تھا انڈیا سے نا. جبکہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہندوستان کو وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اراؤنڈ 350 ملین ڈالرز، جو کہ کوئی تقابل نہیں ہے اس چیز کا. تو کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، یہ پرسپشن صحیح نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی ٹیرف لائنز اپنی کور کی ہیں، جہاں ہم نے ٹیرفز ریڈیوس کیے ہیں وہ 90% ہیں پاکستان کے لیے بھی، اور پیک ٹیرف 8% پہ کر دیا ہے، اور اسی سال ہم اس کو 5% پہ لے آئیں گے. ہم نے بات چیت کری ہے کہ سافٹا کی بھی سینسٹیو لسٹ میں وز پاکستان اس میں اور بھی کمی ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے، اس بار بھی پورا یقین دلایا کہ وہ پازیٹیو لسٹ ریجیم سے جو بہت ہی چھوٹا ٹریڈ کی اجازت دیتا تھا، نیگیٹو لسٹ ریجیم میں جا رہے ہیں. ہم نے اور بھی راستے کھولنے کا کہا ہے. بیاپار تو ٹریڈ تو ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے اور کیا پروڈکشن ہے جو آپ کے یہاں ہے، جو ہندوستان آ سکتا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے جو پاکستان آ سکتا ہے. اس کا ہم نے ڈائیورسیفیکیشن کا بھی فیصلہ کیا ہے. ٹریڈ باسکٹ بڑی کم ہے تو بہت پوٹینشل ہے. انفارمل ٹریڈ زیادہ ہے. تھرڈ کنٹریز کے تھرو جو کوئی دبئی سے، سنگاپور سے ہمارے یہاں کی بنی ہوئی چیز اگر یہاں آتی ہے وہ 3 گنا 4 گنا مہنگی آتی ہے، تو یہ کنزیومر پر بھی بوجھ پڑتا ہے اور آپ کا ریونیو لاس بھی، فارن ایکسچینج کا کافی نقصان ہوتا ہے پاکستان کا. اب ہم نے جو ٹریڈ بیریئرز کی بات کہی جاتی تھی، نان ٹیرف بیریئرز کی، اس کو بھی پاکستان نے جو کہا، کل 3 ایگریمنٹس انیشل ہوئے ہیں، کسٹمز کوآپریشن کا، گریوینس ریڈریسل کا کہ کوئی شکایتیں ہیں اس کو دور کرنے کا، اور میوچل ریکگنیشن جس سے اب سرٹیفیکیشن جو بھی پاکستان کی، چاہے ٹیکسٹائل کی ہے، کیمیکلز کی ہے، جو آپ کے سیکٹرز کی ہے، وہ یہاں کی جو سٹینڈرڈائزیشن ہے، جو یہاں کے جو سرٹیفیکیشن ہے، اس کو ہندوستان پوری طرح سے مان گیا. تو یہ ان کے امپلیمنٹیشن کے ساتھ بارڈر پہ انفراسٹرکچر ہم دونوں نے معائنہ کیا اٹاری باغا پہ، وہ انفراسٹرکچر بہت بہترین ہے دونوں طرف، اور اپریل مہینے میں ہم نے یقین دلایا ہے اس کو کھول دیا جائے گا، گیٹ نمبر 2 کو بھی. اس سے بارڈر جو ہے ٹریڈ کا فلو وہ تیز ہو جائے گا. باقی اگر آپ دیکھیں فراخ دلی کی آپ نے بات کری، یہ وقت آ گیا ہے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا. ہم دونوں کو، ہم نے پاکستان کو کہا، مختوم فہیم صاحب جب ہمارے انویٹیشن پہ بھارت میں آئے تھے سپٹمبر میں، تو ہم نے روڈ میپ طے کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو. اور ہم نے یہ کہا ہے، میں نے یہاں بھی اس کو دوبارہ دہرایا کہ آپ 1 قدم پاکستان لے گا، ہم 2 قدم لیں گے، 3 قدم لیں گے. اس وزٹ کے دوران ایک بڑی بات پاکستان نے ہم سے گزارش کی تھی کہ EU میں، یورپین یونین میں ویور کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کا ہو، اس کو WTO میں بھارت سپورٹ کرے. ہم نے صرف آبجیکشنز نہیں، باقی دوسرے دیشوں کی بھی وڈرا کروائی.
पर हमने उसको को स्पॉन्सर किया, सपोर्ट किया, हमने EU से भी बात की, WTO में बात की, और परसों वो WTO ने अडॉप्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। उससे ये साफ है कि हम दिल और दिमाग खोल के पाकिस्तान के साथ एंगेज कर रहे हैं, और ये हमारी समझ है कि हालात बेहतर होंगे, यहाँ पे तरक्की भी होगी, और जो बेनिफिट्स होते हैं, फायदा होगा माशी ताल्लुकात का, वो दोनों देशों को होगा। क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान से हम पूरी तरह तैयार हैं कि यहाँ से जो भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है वो करें। तो इसमें कोई तवज्जो आपकी इस बात पर होगी कि नॉन टैरिफ बैरियर जो हर्ट हमें सबसे ज्यादा करते हैं, आपने बताया, लेकिन उसमें जो एक मेरे ख्याल में हमारे लोग वजाहत चाहेंगे उस चीज की, बिजनेसमैन आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, वो ये कि नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं सबसे ज्यादा हर्ट करता है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को, और वो क्योंकि हमारी तो मेन बास्केट जो एक्सपोर्ट्स की है वो टेक्सटाइल की मुख्तलिफ वो हैं चीजें, तो उस पर क्या आप कहेंगे? नहीं, देखिए, उस पर हम बिल्कुल गौर कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन का टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और हम टैरिफ्स भी उसको बिल्कुल सीरियसली, आपकी नेगेटिव लिस्ट आते हैं, हम टैरिफ्स के भी उसको देखेंगे। मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि हम साफ्टा सेंसिटिव लिस्ट पे भी, आप जैसे पाकिस्तान भी अपना लिबरल ट्रेड रेजिम की तरफ कदम उठाते हैं, वैसे वैसे हम उसकी तरफ भी गौर करते जाएंगे। अच्छा शर्मा साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा अगर हम इस दौरे पे बात कर लें, आप क्या ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए थे, क्या उम्मीदें लेकर आए थे, और क्या इस दौरे में वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? जी, काफी हद तक। पहली बार एक सब्सटेंटिव बायलैटरल विजिट हुई है भारत से, और जैसा आपने अभी जिक्र किया कि इतना बड़ा डेलीगेशन बिजनेस लीडर्स का आया, जो शायद ही भारत से बाहर किसी भी मुल्क के लिए गया हो, इज अ हुज हू ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो पाकिस्तान में आए। उम्मीद तो यही थी कि जो हमने एक नया सफर शुरू किया है सितंबर महीने से, वो अब और भी तेजी से आगे बढ़े, और हम आए थे एक ऐसा पुल बांधने के जिससे हमारे रिश्तों में और बेहतरी हो, और वो भी आप एक दूसरे के लिए इज्जत के साथ और एक दूसरे में यकीन के साथ। मेरी ऐसी सोच है कि ये हुआ है, कि जिस तरह से हमारा इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से बड़ी खुले दिल और से बातचीत हुई, वेरी कैंडिड एक्सचेंज ऑफ व्यूज, और बाद में मखदूम साहब और हमारे अफसरानों में, और जो जॉइंट डिक्लेरेशन आपने देखी होगी, जॉइंट स्टेटमेंट, उससे बिल्कुल साफ है। तो जो प्रोग्रेस जिसकी आप उम्मीद लेकर आए थे इस ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रोग्रेस आपको नजर आई? अगर आप दो चार बातें, वैसे तो हमने देखा कि जैसे आपने 3 बताया कि एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, उसके अलावा भी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और इसमें दोनों तरफ इस बात की अब पहचान हो गई है कि यही रास्ता है, एक ऑप्शन की बात नहीं है। अगर कोई ये भी कहें कि ये एक ऑप्शन है इकोनॉमिक एंगेजमेंट, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसी से हमको देखना है दोनों देशों में पोटेंशियल भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मौके दसियों बरसों से खराब होते गए। Ours has been a story of missed opportunities. अब जो हमारे नौजवान हैं दोनों तरफ, जिनको रोजगार की जरूरत है, जिनको आगे बढ़ने की जरूरत है, वो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही बढ़ेंगे, उसी से रिसोर्स जनरेशन होगा। हमारे चैलेंजेस भी कॉमन है। जब बड़े दुनिया के अगर आप हिस्सों की तरफ देखें, दो पड़ोसी देशों में कहाँ नहीं है कि थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज रहते हैं, चाहे अफ्रीका में हो, अमेरिकाज में हो, यूरोप में तो बहुत रहे, वहाँ भी रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ हैं। आसियान देशों में भी कई विषय ऐसे रहते हैं जिस पे कई बार ख्यालात बदले हुए होते हैं, पर फिर भी एक इकोनॉमिक यूनियन है। यूरोप इकोनॉमिक यूनियन है, मॉनेटरी यूनियन है, एक कॉमन मार्केट है। तो इस चीज़ को देखते हुए आज जब रीजनल इंटीग्रेशन दुनिया भर में हो गया, एशिया का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तेजी से बढ़ रहा है ASEAN+6 के प्रोसेस से, जिसमें भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, पूरा एशिया पैसिफिक का। साउथ एशिया सबसे पीछे है, और साउथ एशिया का, सार्क रीजन का
बाकी इंटीग्रेशन प्रोसेस से एशिया, क्योंकि इस वक्त दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, आप सही कह रहे हैं कि एक रीबैलेंसिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है। मोर देन 50% अगर आप देखें दुनिया की ग्लोबल आउटपुट एशिया से है। अगले 2 साल से कम वक्त में एशिया की जीडीपी, ईयू की जीडीपी और अमेरिका की जीडीपी बराबर होंगी। तो ये जो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको हम दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होने से, हमारे इकोनॉमिक एंगेजमेंट से साउथ एशिया को भी इस प्रोसेस का हम हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम आनंद शर्मा साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम अब अपने बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा साहब। शर्मा साहब, तारीखी तौर पे बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि दुनिया के दीगर रीजन्स जो हैं वहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान की जब बात आती है तो यहाँ पर सियासत जो है वो डिक्टेट करती है मईशत को, और जबकि दीगर मुल्कों में हम देखते हैं कि मईशत जो है वो सियासत को डिक्टेट कर रही है। ये ऐसा यहाँ भी होगा, लेकिन आपको ट्रेंड हमारे बदलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। देखिए, उसके बिना मुल्क आगे नहीं बढ़ते। आज सब जगह इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो आपने कहा, माशी ताल्लुकात, वही इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को भी, अप्रोच को भी, और हम भी सियासत के लोग हैं। हमारे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और आपके वजीर आजम गिलानी जी में कई मरतबा बात हुई, और जो उन दोनों ने आपस में सोच बनाई, उसको मैं और मखदूम फ़हीम साहब बड़ी सीरियसली उसको और सिंसियरली आगे लेकर चल रहे हैं। और मेरे को इस बात का पूरा यकीन है, मेरी बातचीत से एक होता है जो अंदरूनी बात आती है दिल से, हमने बात की है, और मखदूम फ़हीम साहब भी बहुत उम्दा और साफ सोच के व्यक्ति हैं। तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं नज़र आती कि आपस में खुल के हर मसले पे बात करें और उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन करें। कहते हैं कि तारीखी तौर पे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो पीस प्रोसेस है बड़ा फ्रिजाइल है। हम लोग बेबी स्टेप्स लेते हैं, बरसा बरस की मेहनत के बाद 2-4 कदम बढ़ते हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जो गैर रियासती जो एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो जो पूरा अमल है वो 10-20 कदम पीछे चला जाता है। ये बार-बार ऐसा हुआ है। इसमें सेटबैक्स लगे हैं। इसलिए देखिए, इकोनॉमिक एंगेजमेंट से, माशी ताल्लुकात बढ़ने से एक स्टेक हो जाता है एक दूसरे की इकोनॉमीज में, और उसका सीधा फायदा होता है नौजवानों को। एक बात। दूसरा, जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जितना ट्रेड बढ़ेगा, उससे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये सही है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो जिनका आपने जिक्र किया, जो ऐसी ताकतें जो कि वायलेंस की बात करते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, उससे आम आदमी तो परेशान है। अगर आवाम को देखें तो आवाम तो मेजॉरिटी तो चाहती है कि अमन हो, स्टेबिलिटी हो और तरक्की हो। तुम ये तो करें कि हिंदुस्तान का जो रद्द-ए-अमल होता है बाज़ औक़ात नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से, वो बहुत बियॉन्ड प्रोपोर्शन होता है कि पाकिस्तानी रियासत का दायरा। देखिए, हम आपसे एक चीज कहते हैं, मुल्कों के रिश्ते कहीं भी आप देखें, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, और हमारे एक हिस्ट्री है, पर एक उसके साथ दूसरी हिस्ट्री भी है, शेयर्ड हेरिटेज की है। हमारी ज़बान एक है। जब उन देशों के साथ हमारा कारोबार बढ़ सकता है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं, जहां बातचीत करने के लिए हमको इंटरप्रेटर रखना पड़ता है तर्जुमे के लिए, ये हकीकत है। एक हमारा पड़ोसियों में जब बात होती है, चीन हमसे बड़ा है, चीन की इकोनॉमी हमसे बड़ी है। जो आपने ये जिक्र किया, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ट्रेड का इम्बैलेंस है और डेफिसिट है चीन के साथ। हमारा $74 बिलियन का चीन के साथ ट्रेड है। हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ टू वे ट्रेड 107 बिलियन का है भारत का, और हमारा ओवरऑल ट्रेड 750 बिलियन है, पर यहाँ उसका 0.5% है। ये कई गुना जिसको कहते हैं मैनी फोल्ड, इसमें हम इंक्रीज ला सकते हैं। अब चीन के साथ भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज है। हमारा तो बॉर्डर का भी एक ऐसा मसला है उधर जिस पे बातचीत
दसियों बरस से हो रही है, पर फिर भी जो हमारे माशी ताल्लुकात हैं वो पीछे नहीं हटे। अब एक मोमेंटम बन रहा है, इसको हमारी कोशिश होगी इसको बनाए रखें, लोगों का आना जाना आसान करें, लिबरल वीज़ा रिजीम करें, हमने तय कर लिया, दोनों देश इस पे राजी हो गए। तो इससे क्योंकि देखिए अभी तो फॉलोअप क्वेश्चन जो आमिर साहब ने मेंशन किया ना, तो उसका मतलब ये कि जैसे आपने इस अहमियत की बात की कि जो आगे जिस तरह से पूरी दुनिया की इकॉनमी बढ़ रही है, उसमें जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका बड़ा अहम रोल है, और पाकिस्तान और इंडिया के हालात अच्छे होंगे तो ये भी इस पूरी रीजन की इकॉनमी को ग्रो करने में बड़ी मदद देगा। तो अगर का हिस्सा बनेंगे। जी तो अगर जैसे कि ऐसे लोग जो अभी भी दोनों साइड पे हैं कि जो इस पूरे प्रोसेस को स्टॉल करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई ऐसी बात होती है तो अब इंडिया की तरफ से इतना कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं आएगा कि हम जितने कदम आगे बढ़ जाएं वो या तो रुक जाए प्रोसेस या हम पीछे हट जाएं। दोनों सरकारों के बीच में और जो हमारी लीडरशिप है उनके बीच में बड़े खुले दिल से बात हो रही है। हमको जैसा मैंने कहा, वी हैव टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। जब वो एक बार हो गया, ये ताकतें हैं, वो सब के लिए खतरा है, हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए। और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को, जो सही माने में पीस और स्टेबिलिटी में यकीन करती हैं ताकि लोग अपनी जिंदगी बसर करें अमन और चैन के साथ, हमको इन पे सख्ती से मुकाबला करना पड़ेगा। चैलेंज तो है, ये हमको सबको, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वक्त बहुत खराब हुआ है। अब कुछ बात बनी है और अच्छी बन रही है, इसको हम अमली जामा पहना रहे हैं। शर्मा साहब, क्योंकि वक्त कम है और आपने वक्त का ही तस्करा किया, आखिरी मेरे ख्याल में हमारे पास 2-3 सवाल और हैं। एक तो ये कि ये फरमाइएगा कि तमाम तर गुड इंटेंशंस के बावजूद, नई ख्वाहिशात के बावजूद, अगर आप पिन पॉइंट करें मुख्तसरन, कौन से बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में? सबसे बड़े 2-3 क्या हैं? देखिए, हम तो कहते हैं कि मसले कई हों, पर चैलेंज तो यही है कि हम अपने दोनों मुल्कों के बीच में इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए जो बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, उसको ख़त्म करें। और उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ी मार्केट है, 1.2 बिलियन पीपल, इंडियन मार्केट इज ह्यूज, वो एक्सेस पाकिस्तान को मिलेगी, उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखना है। अब ये है कि हम कहाँ तक पहुँचे, अब वो वेदर इट इज़ अ केस ऑफ ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, तो हम हाफ फुल को पॉजिटिव पे देखते हैं क्योंकि उसमें और भी डाल सकते हैं। हाफ एम्प्टी कहेंगे तो फिर वो एक माइंडसेट ऐसा हो जाता है जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। आपने हाफ फुल की बड़ी अच्छी बात की। उसी हाफ फुल के ऊपर हमें याद आया कि जंग ग्रुप, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप है, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंट किस्म की एक पीस मूवमेंट लॉन्च की है, अमन की आशा। तो आपके ख्याल में इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, ताल्लुकात को बेहतर बनाने में वो क्या किरदार अदा कर रही हैं, क्या फैसिलिटेट कर रही हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे को ज़्यादा समझने का मौका मिलता है। हमारे जो इस ऐसे ट्रैक्स पे जो बात चलती है, ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं, उससे हमारे लोग मिल रहे हैं, हमारे पोइट्स, राइटर्स, ओपिनियन मेकर्स, मीडिया के लोग, वो आपस में अलग अलग स्ट्रीम्स मिल के बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ भी बहुत लोग हैं जो कि ये सोच रखते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों। हमारे यहाँ भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हमारे आवाम की है जो कहते हैं ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये जब ख्वाहिश है दोनों तरफ, उसको पूरा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और शर्मा साहब, आखिरी एक सवाल ये भी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इसकी टाइमिंग के बारे में बताइए कि इसकी कितनी अहमियत है, कि वाई नाउ के इंडिया भी बहुत आगे बढ़ रहा है ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। पाकिस्तान अब कब तक रुके रहेंगे, कब तक रुके रहेंगे? जो पहले नहीं हुआ, जैसे हमने कहा कि हमारी तो कहानी ही मौकों को खोने की रही है, अब क्यों ऐसी उसी को जारी रखेंगे? शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। ये सुर बुलाते हैं, ये सुर बुलाते हैं, जब तुम इधर नहीं आते। ये सुर बुलाते हैं, जब तुम इधर नहीं आते।
بھارتی کامرس منسٹر آنند شرما کا آپ نے خصوصی انٹرویو دیکھا اور اس انٹرویو میں آنند شرما صاحب نے کہا کہ ماضی میں دونوں ملکوں نے تجارت کے فروغ کے بہت سے مواقع کھوئے ہیں، لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جس طرح سے پوری دنیا کے حالات ہم کو نظر آ رہے ہیں تو اس میں علاقائی تجارت کو بہت ہی اہمیت اب دی جا رہی ہے، اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو ایک بہت بڑی ایک اور اپرچونٹی سے ایک دفعہ پھر دونوں ملک ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو تعلقات میں بہتری آ رہی ہے ایک خوشائن بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کو چاہیے کہ دونوں ملک بھروسے اور اعتماد کے پل بنائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب نیگیٹو لسٹ فائنلائز پاکستان کی طرف سے ہو جائے گی تو مزید بھارت اسی سال جو ٹیرف ہیں وہ اس پہ کم کرنے پہ نظر ثانی بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ واگا بارڈر پہ گیٹ نمبر 2 بھی اپریل میں کھول دیا جائے گا، جس سے مزید تجارت کو فروغ ملے گا۔ یہ تو بات تھی پاکستان کے مشرقی ہمسائے کی۔ ہم ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے جو پاکستان کے 2 مغربی ہمسائے ہیں ایران اور افغانستان، اور جو اسلامک ٹرائی لیٹرل سمٹ ہو رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔